After the living world, what is living? Anything that has life. What is life? Unique, complex organization of molecules, shows chemical interaction, and it leads to growth, reproduction, development, consciousness. Life, ability to self-evolve, self-replicate, and form interactive system. Feature, characteristic feature or defining feature. Characteristic feature found in living plus non-living. Example, growth. Not in non-living, not found in non-living, but may be absent from some living. Example, reproduction. Defining feature क्या है इसका? Defining feature living organism का found in or found only in all livings without exception. Found only in all livings without exception. Cell organization, metabolism, consciousness, intrinsic growth. Consciousness is defining feature, not self-consciousness. Self-consciousness, this is not defining feature, but consciousness, this is defining feature. Cell organization. Cell, basic unit of life. Inside a cell, metabolism occur. Metabolism, sum total of all chemical reactions. Anabolism plus catabolism. जैसे यहाँ पे लैक्टोज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है. ये एक लिविंग सेल रिएक्शन है, इकोलाई के अंदर होता है ये. तो यहाँ पे इसको कहते हैं ये इन विवो है. बट हमें यहाँ से इसे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को आइसोलेट करके एक टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, तो इसे कहते हैं इन विट्रो रिएक्शन. ये यहाँ पे लैक्टोज के प्रेजेंस, लैक्टोज डाला जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच. फिर यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में फिर यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनता है. ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, दैट्स व्हाई नोन एज इन विट्रो रिएक्शन, एंड दिस इज यस लिविंग रिएक्शन. Consciousness, most obvious but technically complicated. Most obvious but technically complicated. Awareness of surrounding, ability to sense stimulus, to supply response, to supply response. Animal seasonal breeder, animal seasonal breeder इसका एग्जाम्पल है. एंड ऑल्सो प्लांट फोटोपीरियोडिज्म. सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ, ओनली ह्यूमन बींग्स. ग्रोथ, इंक्रीज इन मास और नंबर. ग्रोथ, इंक्रीज इन मास और नंबर. नॉन लिविंग और लिविंग. नॉन लिविंग ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, इसमें यहाँ पे सरफेस पे एक्यूमुलेशन की वजह से ग्रोथ होता है. ये नॉन लिविंग में और ये रिवर्सिबल है. बट लिविंग में ये इंट्रिंसिक है और ये इरिवर्सिबल है. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन only shows only by living, absent in mule, infertile human couple, workers bee. Mule, infertile human couple, workers bee. Two types, sexual reproduction and asexual reproduction. ये रिप्रोडक्शन ये टू टाइप्स का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे जायगोट में माइटोसिस होने के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से देन ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है. और यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों अलग अलग माना जाता है. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ट्रू रीजनरेशन हो रहा है प्लेनेरिया में, तो यहाँ पे एक जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ में होता है. जैसे ही इसका रिप्रोडक्शन हुआ तो ये 2 सेल बन गया और साथ साथ इसका ग्रोथ भी हो गया, तो ये जो डॉटर बन गया अब. तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर साइनोनाइमस, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट. स्पेशल पॉइंट्स, ऑल ऑर्गेनिज्म्स शेयर जेनेटिक, all organisms share common genetic material but to varying degrees. All organisms share common genetic material but to varying degrees. Due to interaction, new properties emerge at each biological level. Due to interaction, new properties emerged at each biological level. Biodiversity, यहाँ पे डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं. बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन. Biodiversity means variety of living forms according to IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. 1.7 to 1.8 million, 1.7 to 1.8 million ये साइंटिफिक नोन है. 17 to 18 लाख अप्रॉक्स, जिसमें कि 1.2 मिलियन एनिमल्स है और 0.5 मिलियन प्लांट्स है. रॉबर्ट में के
अनुसार 7 मिलियन टोटल स्पीसीज है। क्लासिफिकेशन, grouping of organism on basis of easily observable characters. Grouping of organism on the basis of easily observable characters. क्लासिफिकेशन किया गया। टेक्सोनॉमी, टैक्सो टैक्सिस एंड टैक्सिक मीन्स अरेंजमेंट और नॉमी मीन्स नॉर्म्स मीन्स लॉ। तो अरेंजमेंट हो गया, टैक्सिक मतलब हो गया अरेंजमेंट एंड नॉर्म्स मतलब लॉ, और ये ग्रीक वर्ड है। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है। ओके, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी में हम लोग यही पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी, ये 3 फॉर्म में ये डिवाइड है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी ऑन द बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ओनली। इसमें एरिस्टोटल बताए थे हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री के बारे में, एंड ऑल्सो लीनियस। सेकेंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी बेसिस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल फीचर में एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और फाइटोकेमिस्ट्री, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। और इसमें साइंटिस्ट ने जो काम किया था बेंथम एंड हुकर, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में बेंथम एंड हुकर आते हैं। ओके, सिस्टमैटिक इसका बेसिस था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स फाइलोजेनी प्लस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ये सिस्टमा वर्ड था, सिस्टमा, और ये यूज्ड बाय लीनियस इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी। 4 basic component of taxonomy: characterization, identification, classification, nomenclature। CICN characterization सबसे पहले देखने के बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक देखे, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, देन उसके अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई किए, फिर उसे क्लासीफाई किए, तो उसका नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स, CICN components of systematics, CICN classification, identification, characterization, identification, classification, nomenclature plus phylogeny, जहाँ पे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है उनके बीच, और प्लस साथ में CICN, देन इसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, binomial nomenclature by Linnaeus, Carl von Linné. Binomial nomenclature by Linnaeus, Carl von Linné. 2 components or 2 parts in a name. To avoid confusion, one organism, one universally accepted name. Biological names are generally in Latin and written in italic, मतलब रिटर्न मतलब यहाँ पे प्रिंटेड किया जाता है इटैलिक फॉर्म में, और जब हैंड रिटन लिखते हैं तो उसमें अंडरलाइन करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंगो, मेंजिफेरा इंडिका लिन, तो ये लिन ये हो गया ऑथर नेम, और यहाँ पे ऑथर नेम में नो अंडरलाइन, नो इटैलिक, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे L डॉट लिख दो या फिर लिन लिख दो, ये रिप्रेजेंट करता है लीनियस को। ठीक है, फिर मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा का M कैपिटल, इंडिका का I स्मॉल लेटर। ओके, मेंजिफेरा ये जेनेरिक नेम है और इसे जीनस भी कह सकते हैं, जेनेरिक नेम और जीनस। और इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका, ये इंडिका ये स्पीसीज एपिथेट है। कलेक्टिवली मेंजिफेरा इंडिका ये एक स्पीसीज को डिनोट कर रहा है, साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम और बॉटेनिकल नेम। लैटिनाइज्ड साउंड लैटिन में, एग्जाम्पल पुत्रांजिवा रॉक्सबर्ग है, पुत्रांजिव ट्री, मेंजिफेरा इंडिका मैंगो, रोजा इंडिका रोज, एपिस इंडिका हनी बी, एजाडिरेक्टा इंडिका नीम। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICN
International Code for Nomenclature of Algae, Fungi and Plant. ICN, International Code for Nomenclature of Algae, Fungi and Plants. ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. ICNB, International Code for Nomenclature of Bacteria. International Code for Nomenclature of Bacteria. ICNB, International Code for Nomenclature of Bacteria. ICVCN, International Code for Virus Classification and Nomenclature. International Code for Virus Classification and Nomenclature. ICNCP, International Code for Nomenclature of Cultivated Plants. International Code for Nomenclature of Cultivated Plants. ICNB, International Code for Nomenclature of Bacteria. ICVCN, International Code for Virus Classification and Nomenclature. ICNCP, International Code for Nomenclature of Cultivated Plants. Classification, not a single step process, multi-step process है ये. And then we study taxonomic categories, not a single step process, it is multi-step process. Multi-step यहाँ पर रैंक और लेवल के बारे में पढ़ेंगे. ये जो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न, किंगडम, ये सब अलग अलग रैंक है और लेवल कह सकते हैं. तो टोटल हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी और रैंक और लेवल है. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो का अगर देखें तो स्पीसीज़ हो गया मेंजिफेरा इंडिका, जीनस मेंजिफेरा, फैमिली एनाकार्डियासी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, क्लास डाकोटिलिडन, डिवीज़न एंजियोस्पर्म, किंगडम प्लांटी. तो ये क्या है, ये टैक्सॉन है. ओके. रैंक और लेवल, यहाँ पे रैंक और लेवल, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न, और यहाँ किंगडम. इसका एक ट्रिक है, ये किंग फ्लिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप. किंग कैसे, किंगडम, फ्लिप्स फाइलम, कम क्लास, ओवर ऑर्डर, फॉर फैमिली, गुड जीनस, सूप में स्पीसीज. किंग फ्लिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप. ओके. ये क्या है, ये 7 ऑब्लिगेट रैंक और लेवल जो कह लो. ओके. अब इसमें जो बहुत सारा आ रहा है, जो एग्जांपल हम लोग किसी भी चीज़ का एग्जांपल लेके जो देखते हैं वो टैक्सॉन है, और ये क्या है, रैंक और लेवल है. ठीक है. जब स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो स्पीसीज सबसे लोएस्ट है और किंगडम सबसे हाईएस्ट है. तो ये लोएस्ट से हाईएस्ट जा रहे हैं, मतलब किंगडम जब स्पीसीज से ऊपर जाते हैं किंगडम के पास तो इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि स्पीसीज सबसे नीचे है लोएस्ट में. तो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ये असेंडिंग हो गया. जब किंगडम से स्पीसीज की ओर आ रहे हैं देन ये डिसेंडिंग है. ओके. और स्पीसीज ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर और कॉमन और को रिलेटेड और फंडामेंटल और स्पेसिफिक करेक्टर, मतलब इसमें बहुत सारा कॉमन करेक्टर सब सेम मिलता है स्पीसीज़ के लिए. और किंगडम जैसे ऊपर जाते हैं तो कॉमन करेक्टर कम होता जाता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल करेक्टर में दिखता है. ओके. अगर होमोसेपियंस का एग्जांपल है तो स्पीसीज होमोसेपियन, जीनस होमो, फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्रीमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम और डिवीज़न कॉर्डाटा, किंगडम एनिमेलिया. One taxon belongs only the one rank. One taxon belongs the only one rank. Single rank has many taxon. Okay. Taxon or rank इसे कहा जाता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू NCERT. डॉग, मैमल्स एंड एनिमल्स बिलोंग टू. तो डॉग को अगर देखें तो ये कैनिस आता है, ये अलग स्पीसीज़ है और ये स्पीसीज़ है. मैमल्स मैमेलिया ग्रुप से आ रहा है, ये क्लास है मैमेलिया. एनिमल्स एनिमेलिया, ये किंगडम है. तो सभी कोई जो है ये डिफरेंट रैंक एंड डिफरेंट टैक्सॉन है. ओके. हायर द कैटेगरी डिफरेंट it is to determine relationship between two taxa of same level. ओके. स्पीसीज़ का कंसेप्ट दिए थे अर्नस्ट मेयर. बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कंसेप्ट दिए थे अर्नस्ट मेयर. बायोलॉजिकल
species, biological species concept given by Ernst Mayr. Group of organisms having fundamental similarities. They can interbreed freely and produce fertile offspring. Group of organisms having fundamental similarities. They can interbreed freely and produce fertile offspring. Okay. Examples. For example, Panthera leo, lion, Panthera tigris, tiger, Panthera pardus, leopard. Solanum nigrum, mccoy, Solanum tuberosum, potato, Solanum melanogena, brinjal. Musca domestica, housefly, Homo sapien, humans, Triticum aestivum, wheat, Mangifera indica, mango. Genus, group of closely related species known as genus. Genus with only one living species. Monogenetic genus, for example Homo. जीनस विथ मोर देन वन लिविंग स्पीसीज, तो इसे कहते हैं पॉलीटिपिक जीनस. एग्जाम्पल सोलेनम और पेंथ्रा. सोलेनम जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम मैलिनोगेना, सोलेनम निग्रम, तो ये बहुत सारा के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए कहा गया पॉलीटिपिक जीनस. और इसे कहा गया जब वन इस लिविंग स्पीसीज़ के लिए यूज़ हो रहा था तो उसे कहा गया मोनोटिपिक जीनस, क्योंकि बस यहाँ पे ये होमो के लिए ही यूज़ हो रहा. होमो और किसी दूसरे स्पीसीज़ के लिए यूज़ नहीं होता और किसी दूसरे जीनस में इसे यूज़ नहीं किया जाता. सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम मैलिनोगेना, सोलेनम निग्रम. ओके. पेंथ्रा में पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा टिग्रिस, पेंथ्रा पारडस. ओके. सोलेनम पेटूनिया, धतुरा, ये तीनों जीनस है. फेलिस कैट जीनस को कहते हैं. कैनिस डॉग जीनस. पेंथ्रा लायन लियोपार्ड टाइगर, पेंथ्रा लायन लियोपार्ड टाइगर, ये तीनों के लिए पेंथ्रा जीनस कॉमनली यूज़ होता है. ओके. टैक्सोनॉमिक एड्स, पी प्लांट को डिनोट करा और ए एनिमल को. ओके. डेड रिसोर्स, लिविंग रिसोर्स और बुक और लिटरेचर. तो सबसे पहला पढ़ते हैं डेड रिसोर्स. डेड रिसोर्स में आता है हर्बेरियम और म्यूज़ियम, इन दोनों जगह पे डेड रखा जाता है. हर्बेरियम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट है, और म्यूज़ियम में प्लांट एनिमल बोथ. ये डेड रिसोर्स में आ गया. अब लिविंग रिसोर्स में बॉटनिकल गार्डन आता है जो प्लांट के लिए है, ये सिर्फ प्लांट के लिए बॉटनिकल गार्डन. जूलॉजिकल पार्क ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए. ये दोनों है लिविंग रिसोर्स में. ओके. अब आते हैं बुक और लिटरेचर में सबसे पहला की जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए है. फ्लोरा ओनली फॉर प्लांट, मैनुअल प्लांट और एनिमल दोनों के लिए है. मोनोग्राफ प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए. कैटलॉग प्लांट और एनिमल दोनों के लिए. की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग. तो इसमें इन पांचों में से सिर्फ एक फ्लोरा ही है जो कि प्लांट के लिए आ रहा है, और की, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग ये चारों प्लांट और एनिमल दोनों के लिए आ रहा है. ठीक है. अब हर्बेरियम. फर्स्ट हर्बेरियम, स्टोर हाउस ऑफ प्रिजर्व्ड, प्रेस्ड, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन. स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन. ये हर्बेरियम सीधी से कहा जाता है जहाँ पे ड्राई करके सुखा के इसे प्रिजर्व करके और प्रेस्ड फॉर्म में इसे रख दिया जाता है. एक पेज में जैसे इसे रखा गया, बस ऐसा ही ये दिखता है, इसलिए इसे कहते हैं हर्बेरियम सीट. एक सीट में इसे रखा गया है. और ये सीट जो है इसका साइज़ है, लेंथ है इसका 16.5 इंच, कह सकते हैं 41 सेंटीमीटर, और विड्थ है इसका 11.5 इंच, कह सकते हैं 29 सेंटीमीटर. ओके. इसके राइट साइड नीचे में कॉर्नर में वहाँ लिखा रहता है डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, बॉटनिकल नेम, इंग्लिश और कॉमन नेम, लोकल और वर्नाकुलर लैंग्वेज, फैमिली, नेम ऑफ कलेक्टर. इसके लिए एक ट्रिक है BCDEFPL. B फॉर हो गया बॉटनिकल नेम, B फॉर बॉटनिकल नेम, C फॉर कलेक्टर नेम, D फॉर डेट ऑफ कलेक्शन, E फॉर इंग्लिश नेम और कॉमन नेम भी जिसे कहते हैं, F फॉर फैमिली नेम, P फॉर प्लेस ऑफ कलेक्शन, L फॉर लोकल नेम, BCDEFP एंड L. ओके. B से हो गया बॉटनिकल नेम, C फॉर कलेक्टर नेम, D फॉर डेट ऑफ कलेक्शन, E फॉर इंग्लिश नेम और कॉमन नेम भी कह सकते हैं, F फॉर फैमिली नेम, P फॉर प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड L फॉर लोकल नेम. ओके.
इसमें कुछ पॉइंट है कैसे कैसे रखते हैं। सबसे पहले कलेक्शन, देन ड्राइंग, देन पॉइजनिंग, 0.1% HgCl2 का यूज़ करते हैं। ओके, देन माउंट, स्टेज, लेवल, डिपोजिशन। और डिपोजिशन कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये किसके द्वारा दिया, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के थ्रू, जो कि दिया गया था बेंथम एंड हुकर द्वारा। ओके, एंड हर्बेरियम आर क्विक रेफरल सिस्टम। हर्बेरियम आर क्विक रेफरल सिस्टम। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम लिक्विड, ड्राई दोनों फॉर्म में रखते हैं। और ये म्यूज़ियम जो ये रिसर्च के लिए भी काम आता है, एग्जीबिशन, प्रिजर्वेशन। और एक सबसे फेमस है जो कि नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली, ये सबसे ज़्यादा फेमस है म्यूज़ियम में। ओके, लिक्विड में कैसे रखते हैं, फॉर्मेलिन केमिकल का यूज़ करते हैं। एनिमल रख सकते हैं, और अलगी, ब्रायोफाइट एंड ऑल्सो सिक्युलेंट। ओके, ड्राई में बोन्स, स्केलेटन, बोन्स, स्केलेटन, स्टफ्ड एनिमल्स, स्टफ्ड एनिमल, इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट बॉक्स में कैसे रखते हैं, इंसेक्ट को किल करके, पिन करके, प्रेस रखते हैं। ओके, और कोन्स में। ओके, बॉटनिकल गार्डन कंजर्वेशन ऑफ लिविंग प्लांट। बॉटनिकल गार्डन में कंजर्वेशन ऑफ लिविंग प्लांट, ये है एक्स सीतु, मतलब किसी दूसरे जगह से उठा के हम दूसरे जगह पे ला रहे हैं, डेट्स वाई एक्स सीतु, उसका प्लेस चेंज हो रहा है। और यहाँ पे फैमिली, जीनस और स्पीसीज़, ये 3 चीज़ में मेंशन रहता है। मतलब इस पर जो लेवलिंग किया जाता है, ये फैमिली एंड साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम भी कह सकते हैं, फैमिली एंड साइंटिफिक नेम। ओके, और बॉटनिकल नेम भी कहा जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 तरह का हम लोगों को पढ़ना है। जैसे LNRI, इसका एक ट्रिक है, भारतीय लव्स NRI, भारतीय। बी से हो गया बॉटनिकल गार्डन। ओके, इसका ट्रिक है एल से रॉयल बॉटनिकल गार्डन, एल से भारतीय लव्स NRI। लव किसको करेगा, डार्लिंग को। तो यहाँ पे ये कहाँ है, दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में लव्स डार्लिंग, तो ये है कहाँ, दार्जिलिंग में। एन से हो गया नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जिसे NBRI भी कहते हैं शॉर्ट में, और फिर ये लखनऊ में है। आर से हो गया रॉयल बॉटनिकल गार्डन, भारतीय लव्स NRI, आर से हो गया रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये क्यू इंग्लैंड में है। ओके, फिर बचा आई से हो गया इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये हावड़ा में है, कोलकाता। ओके, फिर से देखते हैं, भारतीय लव्स NRI, भारतीय। बी से हो गया बॉटनिकल गार्डन, एल से हो गया रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में है। फिर एन से हो गया नेशनल बॉटनिकल गार्डन, NBRI, ये लखनऊ में है। आर से हो गया रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में है ये। आई से हो गया इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये हावड़ा में है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन को ही कहा जाता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इसे ही माना गया है। ओके, एंड देन कम फॉर जूलॉजिकल पार्क, ये इसे जू भी कहते हैं। ये भी एक्स सीतु कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स है, ओनली फॉर एनिमल्स। ओके, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, देखने को मिलता है। कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट इज़ क्रिएटेड, कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट इज़ क्रिएटेड, स्टडी ऑफ फीडिंग एंड ब्रीडिंग बोथ। नेशनल जू कहाँ है, दिल्ली में, नेशनल जू दिल्ली में। की रिटन डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट इज़ पेयर्ड, जैसे कपलेट कहते हैं। इस स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज़ नॉन एज लिड। इन कपलेट स्टेटमेंट ये अल्टरनेट फॉर्म में रहता है, जिसमें से कि एक को सेलेक्ट करना रहता है और दूसरे को रिजेक्ट। ठीक है, लिड, फाइनली लिड टू अदर कपलेट, जैसे एक को हम लोग चूज़ करते हैं तो उसमें से 2 पढ़ते हैं, उसमें से जब एक को सिलेक्ट करते हैं वो फिर आगे किसी दूसरे पे हमें मूव करने को कहता है, उसमें गिवन रहता है। ओके, की इससे ये एनालिटिकल, और दूसरा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ पे बेस्ड है ये। ओके, अब हो गया फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये चारों हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। फ्लोरा एफ डिनोट्स फ्यू करेक्टर, फ्लोरा में बस फ्यू करेक्टर पढ़ते हैं। हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मेनली पढ़ा जाता है, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, इंडेक्स के फॉर्म में। और यहाँ पे हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मेनली पढ़ा जाता है। और ये फ्लोरा, एफ इसका डिनोट कर रहा है फ्यू करेक्टर। ये एक तरह का बुक है, यहाँ पे डिटेल ऑफ हैबिटेट्स एंड हैबिटेट
एरिया वाइज बुक है, ये एरिया वाइज बुक है, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली वैसे, और इसमें लोकेशन के भी बारे में गिवन रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन और इंडेक्स कह सकते हैं, ठीक है। मैनुअल, एम डिनोट फॉर मैनी करेक्टर, और ये आइडेंटिफाई नेम इसलिए यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस से मैनुअल का यूज़ करते हैं। ओके, मैनी करेक्टर है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ करेक्टर ऑफ ऑल स्पीसीज इन एन एरिया, ये भी एरिया स्पेसिफिक है, यस। कंप्लीट लिस्ट ऑफ करेक्टर ऑफ ऑल स्पीसीज इन एन एरिया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एरिया स्पेसिफिक, मोर डिटेल देन फ्लोरा से यहाँ ज़्यादा डिटेल रहता है, ठीक है। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। मोनोग्राफ, मोनो मतलब हो गया वन, ग्राफ मतलब स्टडी, किसी एक टैक्सॉन या कैटेगरी के बारे में हम लोग स्टडी जब करते हैं तो वो मोनोग्राफ के अंदर आता है। मोनो मीन्स वन, ग्राफ मीन्स स्टडी ऑफ सिंगल टैक्सॉन और कैटेगरी, ओके। एंड देन कम फॉर कैटलॉग, sequential or alphabetical arrangement of names of all species in an area. Sequential or alphabetical अरेंजमेंट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल स्पीसीज़ इन एन एरिया, एक एरिया के सभी स्पीसीज़ का, बट वहाँ पे अल्फ़ाबेट वाइज नेम लिखा रहता है। जैसे स्कूल में रजिस्टर में रोल नंबर जो आता है वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ही लिखा रहता है, सभी का नेम जो लिखा रहता है वो अल्फ़ाबेटिकल, उसी तरह कैटलॉग में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबका लिखा रहता है। और ये स्पीसीज़, ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होता है, यस। थैंक यू।